will start. I think the questions that are going to be asked in the lab are going to be from the MSc 204 book, and if you ask me the most important questions that may be asked in the session of lab, which will be the features of Windows 10, features of Linux, what is a kernel, what is a shell, and mainly to do with the Linux commands. There are a lot of Linux commands, and if you already have a Mac is actually using Unix like system, and most of the commands that can run on Linux also run on Mac OS X operating system. But anyways, let's start with the features of Windows. So few of the important features of Windows 10 is that it's more secure with Windows Defender. There's no need to install an antivirus. It's improved operating system, and it's got a new scrolling start menu. So many of you have already got Windows. You will see that there is a start menu on the Windows. I'll show you. New Windows 10. So I'm on a Mac right now, so I wanted to really show that to you. But this is basically your start menu, where you have these tiles. You can rearrange these tiles, and on the left hand side you have these calendar and all other stuff. Uh, these tiles you can scroll. If there are more number of tiles, you can rearrange them, organize them, make them big, etc. So once you click on the start button at the bottom left of the screen, you get two panels side by side, which are these two panels, 1 and 2. Left column showing the pinned and recent and most used apps. So this contains your recently and most used apps. And on the right hand side, you have all these panes basically. Okay. Uh, you have the start menu expand to full screen whenever you want. So you can expand it to the full screen also. This start menu. I think one of the older versions of Windows, if I'm not mistaken, Windows 8 had the entire screen as the start menu, which I really didn't like. So I think this is good. It's up to you if you want to expand it or not. Okay. Then with the jump list and flyout menus. Okay, then next, so just to recap, you have features like Windows Defender. So you don't have to really install the antivirus. At least it takes care of the basic security. Improved operating system. You've got the new scrolling start menu, which scrolls basically. Then you have the Cortana Assistant. So like you have Siri on an iPhone. Similarly, you have Cortana Assistant, which is basically a voice-controlled digital assistant. It works both on the mobile, like you must have seen some Microsoft Nokia phones where you have this assistant. Similarly, it works on this desktop as well, on a Windows 10 operating system. It helps you interact with the device without lifting a finger. So you can just talk to Cortana and it'll do and perform different tasks for you. For example, shows a search pane on the taskbar. To trigger it, you have to say, "Hey Cortana," and start searching the start menu. You can also search your hard drive for specific files, pull up photos from specific dates, launch PowerPoint presentation by just telling your PC to do so. So many of the things that you have to go and click, you can just ask Cortana to do. Okay, you just have to say, "Hey Cortana," and then ask it to do whatever you want. Like search a specific file, find a file in this folder, find this photo from that specific date, PowerPoint presentation, etc. Okay, then you have the new browser, Microsoft Edge. Uh, so for a long time, they had, you know, Windows was stuck to the Internet Explorer, but finally in Windows 10 they decided to launch the
Microsoft Edge, which is way better compared to the Internet Explorer, which basically doesn't support most of the things when it comes to web development. So it was replaced by Microsoft Edge, which features a new rendering engine called Edge HTML. So it has a rendering engine to render your content, you render your HTML called Edge HTML. Okay. Edge integrates with Cortana Digital Assistant, to provide voice control, search, and personalized info to users. So you can actually tell Cortana to do stuff using voice control, and it integrates really well with that. You can even do some search using the Cortana Assistant on the Microsoft Edge browser. Okay. You can use Edge to annotate web pages. These annotations are stored on OneDrive, which can be used with other users. Okay. Then you have virtual desktops, a feature that allows you to run and switch between multiple desktops. Okay. Sometimes one screen is not enough. If you want to have multiple screens, you can do that. You can have virtual desktops basically with different users. So that feature is also new in Windows 10. Show that to you. Windows 10. So here you go. Desktop 1, desktop 2, desktop 3. Okay, so you can have multiple desktops. You can have their own setup. Uh, on a, I mean, I shouldn't be really talking about Mac, but since I use it, I'm just letting you know that even Mac has that feature that you can actually have multiple desktops with different usernames, and you'll have like complete different setups. So let's say in a family, if there are two people using the same computer and they use it one by one, they can log into their own desktop and work on it. You can also, you yourself can log in on multiple desktops and keep it logged in as well. So it's up to you. Okay, so you have virtual desktops, switch between multiple desktops. You have universal apps, including App Office. So there are different apps that you can download. Let's see. Okay, so there are several apps, like you can see over here. You have Netflix, you have USA Today, the Weather Channel. I'm pretty sure there's some games also. Viber, eBay, all of these apps basically. Okay, so there's something new. It has got universal apps, so which is a new Windows store where you can download desktop programs as well as modern window apps. Some apps could be free, while the others may be chargeable. Many of these apps will be universal apps that are same code on a PC, Windows Phone, or an Xbox One, with an interface changing to suit the different screen sizes. So it's really good for developers, especially uh, who are, let's say, if they're designing a game. Okay, they can write code for one as a one software, and same software is going to work both on phone, gaming, Xbox One console, as well as PC. Okay, so same thing, the same code is going to work across different platforms, and the interface will change depending on which platform you're using it. So that is pretty useful. Okay, with these universal apps. Then you have the task switcher. There is a task view icon in the taskbar to see the running apps instead of all tabs. So when I think most of the people are already familiar with the all tab where you can switch between multiple applications, but you also have the star switcher that you can use to switch between multiple tasks. Okay, right? Okay, so we're going to give you a recap. So what are the features of Windows 10? First is security.
So you don't need to download a software, an antivirus. It is highly secure. It's called a Windows Defender. It's got an improved operating system. Next is it's got the new start scrolling start menu, which is divided into two parts. Like on the left hand side, you get panels, which is showing the pinned and recently most apps. On the right hand side, you have different panes which you can organize. You can also make this start menu as a full screen. Then you have the Cortana Assistant, which is basically the voice control assistant. You can ask Cortana to perform multiple tasks, like ask it to open a particular folder, find a particular file or a image, open a PowerPoint presentation. All you have to do is just say, "Hey Cortana." Okay. Then you have the new browser Edge, which is going to provide you with many features. It was replaced by the Internet Explorer was replaced by this Microsoft Edge, and it's got a rendering engine called Edge HTML. Okay, and it integrates really well with Cortana Digital Assistant, provide voice control, search, and personalize information to the users. You can use Edge to annotate web pages, and these annotations are stored on OneDrive and can be used with other users. Virtual Desktop allows you to run and switch between multiple desktops. New Windows Store, where you can download desktop programs and modern Windows apps. Many of those apps will be universal apps that are same code on a PC, a Windows phone, or an Xbox One, with the interface changing to suit different screen sizes. Uh, Office of Windows app like Word, Excel are universal. There's a task view in the taskbar to see the running apps. So you've got the task switcher as well. So again, quick recap: security, improved operating system, new start menu, Cortana Assistant, new browser which is Microsoft Edge, and virtual desktop, switch between multiple desktops. You've got universal applications, universal apps you can download, and you have the task switcher as well. There are many more as well, but I think for exam point of view, if you say these many, I think that should be enough. Okay. Then we'll talk about the features of Linux. So, what is Linux? First of all, let's talk about that. So, Linux is basically an open source Unix like operating system based on Linux kernel. An operating system kernel first released in 1991 by Linus Torvalds. Okay, so it's nothing but an operating system which is Unix like, and Unix was also an operating system. Okay, now, so what are the features of Linux? Like, what are the advantages of using a Linux operating system versus any other? First of all, it's portable, means that the software can work on different types of hardware in the same way as. Hi, Sumaya. Hi, I don't think anyone else has joined it, right? I don't know. I don't know. Okay, that's fine. I'll just continue. You done with the preparation? I didn't do Windows and Linux. Okay, that's fine. But you're done. So then, what preparation have you done? I did for What? C and Python. I was going to do Windows and Linux after tomorrow's exam. Okay. Is is this one 204, 205? Windows and Linux. Oh, it's 204. Can you check? Can you double check? Yeah, Am I it's missing? 204. I thought the C and Python one was So 204. the exam is going to be tomorrow for this one. Just confirming. Yeah. Okay. So, anyways, no problem. So basically, like I said, important things in this exam are these guys, which is features of Windows 10. I had a chat with what's his name, Ashish, and I asked him what questions were asked in the exam, and he mentioned the questions that were asked were features of Windows 10, features of Linux, what is kernel, what is shell, and a couple of Linux commands. And everything that you see here is from that book only, and I think
the pattern that we have seen in the past exams, in the last three exams, is that yeah, the questions are coming from the book, the textbook itself, and not from previous year papers. So with Yeah. that thought in mind, and the fact that the same questions were asked in the earlier exams also, I think these are going to be the important one. That's what you'll be asked tomorrow. Okay, so yeah, what I don't like is that they are conducting exams together for everyone, which means if you goof up, it's like you feel bad in front of everybody else. But yeah, I mean, what can we do? That's Okay, going to make me more nervous. yeah, exactly. So I was thinking for tomorrow we'll make kind of a list of. I'll do this tomorrow morning. So we'll make a list of who all are there, and probably organize like who goes first, because I'm pretty sure they have not done any organization. They'll just randomly pick people. So rather than they picking up people randomly, I think it's better we give them a list that this will be the sequence. This is how you can ask questions from people. So yeah, we'll That do that sounds good. tomorrow. Yeah. Okay, so coming back to features of Linux, so it's first is portability, which means the software can work on any different types of hardware in the same way. Linux kernel and application programs support installation on any kind of hardware platform, which means one software works on multiple types of hardware in the same way. You don't need a different software for different hardware. For example, if I want to install Linux operating system on my machine, it's going to work the same way, even though it's Mac, as what you will do on Windows. That is the meaning of portability, that the same software works on multiple hardwares in the same fashion. Then it's open source. We all know what open source is. Basically, it's free. You don't have to pay for it. It's not that you'll start using today and after 1 year they'll come and say that you have to start paying a monthly service for that. It's an open source, freely available, community-based development. If I'm not wrong, 100%, I think Unix was created by AT&T initially, at least some code of it. But Linux is definitely free. Multiple team works in collaboration to enhance the capability of Linux operating system and is continuously evolving. Okay, then it's multi-user. Linux is a multi-user system which multiple users can access the system resource like memory, RAM, application, programs at the same time. So if it's the same operating system, there can be multiple users logging into the same system even remotely. Like from my machine, I can log in to the Linux operating system, and from somebody else's machine, they can log in remotely as well using SSH. Then you have multi-programming, which is Linux is a multi-programming system. It means that multiple application can run at the same time. It's hierarchical file system, which means Linux provides a standard file structure in which system files, user files are arranged. Then you have shell, which provides a special interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. So shell is nothing but a program itself. Uh, I will talk more about it when I discuss kernel and shell over here, but shell is also a program which it can execute commands of the operating system. It can be used to do various operations, call application programs, etc. Then graphical user interface. People think that Linux is a command line operating system. Somewhere it's true, but not necessarily. Linux have has packages which can be installed to make the whole operating system graphic based as Windows. Then you have security. It provide the user security using authentication features like password protection, control access to specified files, encryption of data, etc. Okay, so a recap: open source, multi-user, multiple users can use it. Multi-programming, so multiple programs can run at the same time. It's got a hierarchical file system. So I'm not going into the file system. I'm not sure whether I'll be asking that question, but file system is really I mean, I don't think we can remember much on that, so you can check that out later. But it has a hierarchical file system, like it has root, then different folders for different things like etc for user,
So the different folders. So that's the hierarchical file system it's talking about. They are in hierarchy. Okay. It has shell, which is an special interpreter program that performs different uh, operations such as execution of the commands. It has graphical user interface, and it is secure. Okay, recap again. Open source has multi-user, multiple programs can run it at the same time. Hierarchical file system. It's got a shell, graphical user interface, and it's secure. This is important. They may ask what is a kernel, what is a shell. So kernel is basically the main control program in the Unix operating system. The thing is that kernel doesn't allow the users to go ahead and execute the commands. For execution of the commands, it requires a special program that is called shell. Okay, so for example, if you go to the terminal, show you. Say echo hello world, so it's done the echo of hello world. Okay, but if I say hello, You're not sharing your screen. oh sorry, I'll do that. Thanks. So all this while I've not been sharing the screen. Oh my god. What the heck? Anyways, so let's say we go to the terminal and we type echo hello world. Okay, so hello world is printed, but if I say hello space 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 world, notice that space is automatically being removed. Who does this part? Who is removing this extra space? So of course there are some rules and logic that's been set, and that is done by shell basically. So shell is the program which basically interprets, checks, translates, passes, do everything possible. And once it finishes its execution, it passes that information to the kernel. So shell basically sits between the user uh, as well as the kernel. Okay, so kernel is the main control program, and but it doesn't allow the user to give the command directly. Okay, you need shell for that. Shell is also a program, the job of which is to basically pass, check, translate, and then pass it to kernel for execution. Okay, so that's your kernel and shell basically. There are different types of shells that are available. There is bash, there is zsh, con, tsh, fish. Most people use bash. I use zsh. If I have to show you, you can see that this is zsh. So I'm using zsh basically. I still can't see the screen. Really? I'll stop share. Now can you see? No. No? What the heck is happening? Chrome has lost permission to capture it. To fix this, go to system preference. Hold on. Check Chrome. If already checked, then oh, okay. Let me try again. I'm going to basically
have to end this session because it's not allowing me to share the screen. So I'll share another link. Okay. Okay. So Maya, can you hear me? Yeah. Okay, cool. So uh, now you can see the screen, right? Yeah. Okay. So this is what you're talking about, that the different types of shells basically. You have Bash, you have ZSH. I'm using ZSH. Oh my, ZSH. Uh, yeah, this is my ZSH basically. So that's my shell. Okay, there are a few things we can learn more about the kernel and shell. Once the command has been interpreted and executed, the kernel sends its reply, which have may simply be a prompt for the next command to be entered, either directly to the display monitor. This is a program responsible for deciding where and in what form the output will appear to the display monitor. Some of the commands are internal,
while the others are external. The internal commands involve the shell and the kernel, and external commands may be supplied to the operating system. It may be user written. So even we can write the shell scripts to execute different commands. External command is the name of the file that contains either a single executable program or a script. So, like I said, we can write our own script which can contain either a single command or multiple commands. So, sometimes there could be a situation where we have to execute multiple commands, uh, and they can be executed based on certain conditions. Like if x equals so and so, then execute this. So we can write the entire multiple programs into that script, and then all we have to do is just run a single script, and then it'll execute everything inside of that. A command may also be an alias for an internal or an external command. We look at this when we are doing commands. So basically, अगर कोई कमांड है जैसे ls है, ls का काम है कि सारे जो भी है तुम्हारे इस डायरेक्टरी में उसको लिस्ट डाउन करना, तो उसका एलियास बना सकते हैं, किसी और नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम चेक करेंगे जब हम कमांड सारे पढ़ेंगे तो। Okay, there are something called wildcard characters, which are another shorthand character is the use of wildcard character in file names. Technically, file name globbing. The star character in a file name represent any string of characters. So sometimes if you have to write a path of different file, and there can be multiple files in a single folder. So instead of writing, if you're like, let's say you're looking for something in a particular directory, so instead of writing each and every file name, you can write like star. So for example, let's say you have a directory called hp docs. Inside of that you have called main, and then inside of that you have multiple files, so you can just address it by star. So this means that all the files inside of this main. Okay. uh, in fact, .txt, which means all the files which has any name with a .txt extension. This is what it's talking about. That this star character in a file name represent any string of characters, including no character. And the question mark represent any single character. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सिंगल कैरेक्टर वो सिर्फ ढूंढेगा, कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है. These wildcards may be used more than once and may appear in the combination in a path name. So अभी मैंने एक path बताया था, जैसे कोई भी path चेक कर लेते हैं. pwd एक कमांड है जिससे पता चलता है हमारा पाथ क्या है. तो हमारी इस डायरेक्टरी का पाथ है यूजर्स स्लैश इमरान सैयद. तो इसमें अगर मान लो कोई फाइल्स हैं, जैसे स्टार डॉट txt, मतलब all the files with an extension txt in this directory. This is complete path. This is the path name that they're talking about. Okay. Let's move on. So now we'll do the commonly used Linux command. तो Linux, अब क्योंकि Mac OS मेरे पास है और इसमें Linux के max to max 90% कमांड चलते ही हैं, तो what we'll do is rather than me installing a separate Linux operating system, I'll use my terminal itself, because like I said, it's basically going to do the same thing. तो पहले cat कमांड है. cat कमांड का काम क्या है? You can read the content of a single file or a multiple file. You can print them out. जैसे मेरे पास कोई फाइल है, पहले फाइल क्रिएट करते हैं. फाइल क्रिएट किया नैनो कमांड से, उसका नाम लिखा जैसे hello.txt. इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, hello world. ठीक है, अब इसको बंद किया, ये फाइल हो गई. अब मुझे इस रीड करना है इस फाइल के अंदर है क्या, तो हम यूज कर सकते हैं cat कमांड. cat और फाइल का नाम क्या है, hello.txt. मेरे पास दो फाइल है एक्चुअली सेम नेम से, एक डिलीट करना पड़ेगा. rm hello.txt. तो इसका नाम txt होना चाहिए, बट ठीक है फाइन. तो अभी कैट मैंने लिखा और फाइल का नाम डाला, तो देखो यहाँ पे उसका कंटेंट उसने डिस्प्ले कर दिया, और बस यही काम है उसका. ठीक है. You can combine files by using
arrow operator and then append files by using arrow operator. ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. Then you have chmod. Chmod is basically used to change the permission of a file. तो हर फाइल की एक परमिशन होती है, या उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. फाइल एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब वो एग्जीक्यूटेबल होगी, मतलब उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी तब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अभी कोई टेक्स्ट फाइल है हमारी, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना, इसमें तो कुछ कमांड ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए फाइल. तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है आर हो गया रीड, डब्ल्यू हो गया राइट और एक्स हो गया एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये परमिशंस होती हैं. तो हर फाइल की अपनी अपनी परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है. हर बंदे को एक्सेस नहीं है कि वो उस पर राइट कर सके, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड हैं वो सब खराब हो सकते हैं अगर कोई कोई भी आकर रीड करता हो. तो अलग अलग यूज़र्स हैं और उनको अलग अलग परमिशन मिलती है. तो कई तरह के यूज़र्स होते हैं. इसमें होता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र्स, फिर ग्रुप और फिर अदर. ठीक है. सो मेन यूज़र, आई थिंक यूज़र रहेगा एडमिन, ग्रुप एंड देन अदर. ठीक है. तो इसके लिए ये आप परमिशन दोगे. तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो मेरी फाइल्स हैं. अब यहाँ पे देखोगे तो हर फाइल की अपनी परमिशन है. जैसे कि ये फाइल है, इसकी परमिशन यहाँ पे दी हुई है. तो हर परमिशन एक ग्रुप बना के आती है. तो ग्रुप कुछ इस तरह से बनता है, 3 3 6 3 9. यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरी डायरेक्टरी हैज 4 सेट्स ऑफ आर डब्ल्यू एक्स. एक्चुअली 4 सेट्स है, मैंने यहाँ 9 लिखे हैं, 3 सेट लिखे हैं, 4 होंगे सेट्स. 4 सेट्स ऑफ आर डब्ल्यू एक्स मैंने एक साथ लिखा है, बट इन योर ब्रेन यू कैन अंडरस्टैंड. सो देयर आर 4 सेट्स, 1 2 3 एंड 4. रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस. आर रीड के लिए, डब्ल्यू राइट के लिए और एक्स एग्जीक्यूटेबल के लिए. ईच सेट ऑफ दीज गाइज रिप्रेजेंट यूजर ग्रुप इन अदर रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे अभी जो ग्रुप बन रहे हैं इसमें अलग अलग परमिशंस हैं इसकी. रीड राइट एग्जीक्यूट, देखो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट है, यहाँ पे रीड है, राइट मतलब पहला वाला किस चीज़ के लिए? यूज़र के लिए. पहला वाला रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब यूज़र यानी एडमिन को सब सारी परमिशन है. फिर दूसरा ग्रुप बना आर हाइफन एक्स, किसके लिए बना? ग्रुप के लिए. तो ग्रुप को क्या परमिशन है? रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता. अदर्स मतलब सारे लोग, उनके लिए क्या परमिशन है? लास्ट वाली, रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है. अब मुझे कोई परमिशन चेंज करनी है, मान लो किसी के लिए, ग्रुप के लिए मुझे परमिशन चेंज करनी है, यहाँ पे मुझे परमिशन चेंज करनी है ऑल के लिए. तो उसके लिए चमॉड कमांड यूज़ होता है. तो चमॉड कमांड में अलग अलग पैरामीटर पास करते हैं. तो अगर हमें परमिशन ऐड करनी है तो हम प्लस यूज़ करेंगे, परमिशन रिमूव करनी है तो हम माइनस यूज़ करेंगे. तो पहला वाला जो इसमें एलिमेंट है वो है इसकी परमिशन चेंज करनी है. जी होता है ग्रुप के लिए, तो ग्रुप की करनी है. क्या करना है? ऐड करना, रिमूव करना. ऐड करना तो प्लस डाला. कौन सी परमिशन? रीड की राइट, तो राइट तो डब्ल्यू डाला. किस चीज़ की? कौन सी फाइल की? इस फाइल की. ये क्या करेगा? परमिशन चेंज कर देगा. ठीक है. तो मान लो हम एक फाइल बनाते हैं, मान लो अ, तो इस फाइल की परमिशन क्या है? lsal hello डॉट txt. तो यहाँ पे परमिशन ये है इसकी. तो यूज़र के पास परमिशन कि वो रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बिकॉज एग्जीक्यूटेबल नहीं. ग्रुप के पास परमिशन है, रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो अगर हमें परमिशन चेंज करनी है ग्रुप के लिए तो इस फाइल की, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम चमॉड यूज़ करेंगे कमांड. ग्रुप की चेंज करना है, ऐड करना है परमिशन, राइट परमिशन, हेलो डॉट
अब हम परमिशन चेक करेंगे, हेलो डॉट, देखो राइट परमिशन आ गई उसकी, पहले नहीं थी अब राइट परमिशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। अदर की करना है तो इस तरह अदर की भी कर सकते हैं। ओ प्लस निकालना है परमिशन तो बस प्लस की जगह माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ द मॉड वर्क्स। सारे अंदर की सारी फाइल्स, सारे कंटेंट की चेंज करना है। मान लो मल्टीपल डायरेक्टरीज है, पूरे फोल्डर की परमिशन चेंज करनी है, तुम्हारे आर यूज कर सकते हैं, रिकर्सिवली यूज कर सकते हैं। तो जमाउट क्लियर हो गया। उसका थोड़ा फनी नेम है, but that's what it's called. Then you have chown. So chown changes who owns a particular file or set of files. तो कौन उसका ओनर है, तो ओनर का नाम दे सकते हैं और फाइल नेम दे सकते हैं। अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। देन सीपी कमांड, सीपी कमांड का काम है कॉपी करना। तो किसी एक फाइल को किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में डालना है तो वो हम डाल सकते हैं सीपी कमांड से। तो करके देख लेते हैं इसको। एक फोल्डर बनाते हैं, बाय द वे फोल्डर के लिए mkdir यूज होता है, आई टेस्ट। अभी माई टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, माई टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है। ls करोगे तो माई टेस्ट दिखेगा, ये फोल्डर बन चुका है इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे हेलो नाम की जो फाइल थी मुझे उसके अंदर डालनी है, अपने फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर का पाथ क्या है, पहले पाथ पता करेंगे। तो उसके लिए हम उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। फोल्डर जाने के लिए cd कमांड यूज होता है। फोल्डर का नाम अभी हमने क्रिएट किया माई डॉट टेस्ट। इसी फोल्डर का पाथ पता करने के लिए pwd यूज करते हैं। pwd से हमें पाथ पता चल गया, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब cp कमांड यूज करना है, कौन सी फाइल को डालना है, hello डॉट txt। कहाँ डालना है, ये पाथ के अंदर, इसके अंदर, और एंड में स्लैश लगाएंगे, मतलब उसके अंदर डालना है। Oops. नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओ मैं एक्चुअली उसी डायरेक्टरी के अंदर था और मैं कह रहा था कि यहाँ आके करो कॉपी, तो डायरेक्टरी के बाहर निकला और फिर मैंने कॉपी किया। अब हम चेक करेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर, तो हमें वो फाइल मिल जाएगी माई डॉट। ये देखो ये फाइल इसके अंदर आ गई। कॉपी किया है, मूव नहीं किया। मूव करना होता तो एम वी यूज करते हैं, एम वी करते तो मूव हो जाता वो। यहाँ मैंने कॉपी किया है, तो हमारी फाइल कहाँ थी, रूट में थी, और कहाँ पे हमने डाल दी उसको, माई टेस्ट के अंदर, फोल्डर के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन। डेट, डेट का काम है डिस्प्ले करना, यहाँ पे डेट को सेट करना। तो सेट करने का हम नहीं सीख रहे हैं, बट हाँ सेट भी कर सकते हैं। तो अभी डेट कमांड टाइप करोगे तो डेट डिस्प्ले करेगा, आज की डेट और टाइम। एंड यू हैव डिफ, डिफ का काम है दो फाइल्स के बीच में डिफरेंस दिखाना, कि दो फाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है कंटेंट में। तो लेट्स सी, क्रिएट टू फाइल्स और ओके, दो फाइल बनाते हैं। टच, टच से हम फाइल बना सकते हैं, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt। हमें दो फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर थोड़ा कंटेंट डाल देते हैं। पहले फाइल के अंदर ये डाला है, दूसरे फाइल के अंदर सेव करते हैं, इसको निकलते हैं। ठीक है, दो फाइल बन गई हमारी, फाइल 1 और फाइल 2। अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए हमें डिफ कमांड यूज करना है। तो डिफ यूज किया, दो फाइल का नाम दिया दोनों के डिफरेंस के लिए, फाइल 1 फाइल 2।
तो देखो डिफ दिख गया, वो बता रहा है क्या डिफरेंस है, लेट्स स्टडी डिफरेंस। देखो दोनों में हेलो इमरान है, लेकिन दोनों में वो चीज़ जो नहीं है वो है लेट्स स्टडी। तो ये आ गया। मूविंग ऑन, एग्जिट कमांड। कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो उससे एग्जिट कर सकते हैं एग्जिट कमांड से। जैसे कि कि अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है इसका, बट इफ यू आर रनिंग समथिंग यू कैन एग्जिट इट। फाइंड फाइंड का काम है कि किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो आप कोई फाइल अगर ढूंढना है हमें किसी नाम से तो हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हम टाइप करेंगे फाइल फाइंड, कहाँ पे ढूंढना है उसका पाथ नेम चाहिए। पाथ नेम या तो हम पूरा पाथ नेम दें इस डायरेक्टरी का, इस तरह ये फाइंड ये पूरा पेस्ट करें, और या तो फिर अगर हम करंट डायरेक्टरी में ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी का पाथ, ऑटोमेटिकली वही समझेगा वो। तो डॉट यूज़ कर सकते हैं। डॉट के बाद नेम, ये फ्लैग पास के नेम, और फिर पैटर्न, क्या पैटर्न होना चाहिए, तो या हेलो नाम से होना चाहिए फाइल। तो सर्च करते हैं, ढूंढ रहा है वो, करंट में नहीं मिलेगा तो और भी जाएगा। एक्चुअली बहुत बड़ा फोल्डर है ये, इतने में नहीं ढूंढना चाहिए, छोटे किसी फोल्डर में ढूंढना चाहिए था, इससे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। नो वरीज, लेट मी सी, माई टेस्ट है हमारे पास। माई टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल है, अभी एक और फाइल डाल देते हैं, टच। ठीक है, अब इसके अंदर दो फाइल आ गई, इसी के अंदर ढूंढते हैं। फाइंड इन दिस डायरेक्टरी आई टेस्ट and then name, क्यों नहीं मिला। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं कैसे चलेगा ये। नेक्स्ट इज फिंगर कमांड। फिंगर कमांड का काम है कि जो भी यूजर हैं ऑलरेडी, अगर सिर्फ फिंगर कमांड रन करोगे तो जो भी यूजर्स हैं तुम्हारे सिस्टम में वो सारी यूजर का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वो। इफ आई जस्ट टाइप फिंगर, तो अभी दो यूजर्स हैं, एक कंसोल से लॉग्ड इन है और एक बाहर से लॉग्ड इन है। ठीक है, तो दोनों यूजर्स का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया। अगर किसी पर्टिकुलर यूजर का और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो फिंगर के बाद उस यूजर का लॉगिन नेम डालना है। तो जैसे मैंने अपना लॉगिन नेम यहाँ पे डाला, तो इसमें देखो सारा डिटेल उसने दे दिया कि नाम क्या है मेरा, शेल कौन सा है, मैं बता रहा था ना कि मैं ZSH यूज़ कर रहा हूँ, शेल का नाम मेरे ZSH है, तो ये ZSH शेल है, उसका पाथ दिया हुआ है कहाँ पे इंस्टॉल्ड है मेरा शेल, मेरी में कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें मेरे सारे फोल्डर्स हैं, कब से लॉग्ड इन हूँ मैं। ठीक है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कब लास्ट मेल रीड किया था, कोई अगर प्लान बनाए, प्लान नाम की डायरेक्टरी बनानी होती है, अगर कोई प्लान अपना ऐड करना है अपने रेफरेंस के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिंगर कमांड डिस्प्ले करता है। फिर होता है ग्रेप। ग्रेप सर्चेस अ फाइल और फाइल्स फॉर लाइंस दैट मैच अ प्रोवाइडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर किसी फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको ढूंढना है तो आप ग्रेप कमांड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे उसके यूज़ केस हो सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कराना है आपको, तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं।
file.txt does not exist. Hello.txt अंदर हेलो, अच्छा हाँ, ये केस सेंसिटिव है आई थिंक, तो इसलिए वो एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहा है। तो ऑल दो हेलो के अंदर हेलो वर्ल्ड है, लेकिन क्योंकि मैं हेलो टाइप कर रहा हूँ, ये केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए वो नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, अब यही अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर दूंगा, हेलो, देखो मिल गया उसको, लाल उसने किया मतलब उसको हेलो मिल गया। ठीक है, और कुछ ढूंढना है, ब्रांड ढूंढना है, इस फाइल के अंदर मुझे वो टेक्स्ट ढूंढना है बेसिकली। देखो उसने हाईलाइट कर दिया कि उसको वो टेक्स्ट मिल गया उस फाइल के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि केस सेंसिटिव ना हो तो डब्ल्यू फ्लैग पास कर सकते हैं। अब मैं अगर छोटा भी लिखूंगा तो भी वो ढूंढ लेगा। सही है ना, सही है ना? डब्ल्यू पहले आता है क्या? एक मिनट। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। दैट लेटर। Okay, then head prints the first couple of lines of one or multiple files. तो किसी एक फाइल है उसमें कई सारे लाइंस ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, तो मान लो हमें कुछ ही लाइंस प्रिंट करनी है, तो हम हेड से प्रिंट कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि और भी लाइंस डालते हैं। अभी अब हमारे पास इतनी लाइंस है, हमें लेकिन सिर्फ दो ही लाइन प्रिंट करनी है, तो हम हेड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें देना है माइनस साइन और एन। एन यहाँ पे वैल्यू है कितनी लाइन प्रिंट करनी है, तो हमें लेट्स से हमें दो लाइन प्रिंट करनी है उस फाइल में से। फिर उस फाइल का नाम हेलो डॉट टी एक्स टी, तो दो लाइन प्रेस उसने प्रिंट की। यहाँ पे तीन करते हैं तो तीन लाइन प्रिंट करेगा, एक करते हैं तो एक करेगा। सो द जॉब ऑफ हेड इज बेसिकली टू print n number of lines, not couple of lines, but say n number of lines. Okay. Then there are other commands also. So these were the most common one, और भी हैं, वो उसमें से देख लेना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि when you are practicing, practice the most commonly used command first and then move on to the other commands, because इतने सारे commands हैं कि I cannot tell you, बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, just hold on। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका एंड। एंड का काम है रन जॉब इन द बैकग्राउंड इफ अ कमांड एंड्स विद एंड। कोई भी अगर कमांड, अब मैं सारा इसमें नहीं करके दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा है, सब करने बैठे तो रात हो जाएगी। बट जो इम्पोर्टेंट लाइक जो इजी वन से आसानी से देख सकते हैं उसको मैं दिखाऊंगा। किसी भी कमांड के एंड में एंड लगाने से वो बैकग्राउंड में चला जाता है, बैकग्राउंड में रन होता है वो। फिर होता है डील डेल या फिर कंट्रोल सी। तो ये किसी भी जॉब को कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है। अभी तुमने नोटिस किया होगा, मैं कई बार कोई कमांड रन कर रहा हूँ तो बीच में कैंसिल करने के लिए मैं कंट्रोल सी का इस्तेमाल करता हूँ। तो कंट्रोल सी बेसिकली अगर कोई ऑलरेडी बीच में जॉब रन हो रहा है, किसी वजह से गलत हो गया है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। या फिर डेल यूज़ कर सकते हैं। डेल तो बहुत लंबा, डिलीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। आई एम यूज्ड टू दिस वन। कंट्रोल जेड, ये ऐसे टाइप नहीं करना है, कंट्रोल बटन आपके कीबोर्ड पे होता है वो टाइप दबाना है और साथ में जेड दबाना है। इसका काम होता है सस्पेंड करना किसी भी जॉब को। कोई भी जॉब चल रहा है तो उसको सस्पेंड कर दो, तो रोक दो थोड़ी देर के लिए। एफ जी का काम है रिस्टार्ट द सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड। तो अभी कोई जॉब मान लो सस्पेंड किया है कंट्रोल जेड से, तो उसको वापस
रीस्टार्ट करने के लिए यूज FG। TG का काम है रन द सस्पेंडेड जॉब इन द बैकग्राउंड। फिर होता है डेलीमीटर। डेलीमीटर का काम है कि कई सारे कमांड्स हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एको हेलो वर्ल्ड। फिर दूसरा कमांड है कैट हेलो डॉट txt। तो देखो दोनों काम हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया उसने, हेलो वर्ल्ड। एक्चुअली कुछ और मुझे लिखना चाहिए था, लेट मी राइट समथिंग एल्स, सम टेक्स्ट। अब यहाँ पे दो कमांड वो रन कर रहा है। क्या कर रहा है वो, पहले में एको करेगा ये, और दूसरा कमांड है इस फाइल के कंटेंट को दिखाएगा। पहला देखो उसने एको किया और बाकी उस फाइल का कंटेंट दिखाया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कमांड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद मान लो हमें इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, तो डॉट डॉट किया, डायरेक्टरी के देखो बाहर निकल गए। पहले हम माई टेस्ट में थे, यहाँ निकल गए। तो सेमी कॉलन लगा के हम मल्टीपल कमांड्स एक साथ रन कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट से हम ग्रुप कर सकते हैं कई कमांड्स को। ये होता है बैंग बैंग कमांड। तो इससे क्या होता है, अगर कोई कमांड ऑलरेडी आपने रन किया है, उसको फिर से दिखाना है उसकी हिस्ट्री में से निकाल के, तो बैंग बैंग कमांड यूज कर सकते हैं। तो शो यू, इसके पहले कौन सा कमांड था, ये था राइट। क्लियर करूंगा एंड बैंग बैंग, क्लियर आ गया। एक और ऑप्शन होता है पिछला कमांड रिपीट करने के लिए, एरो यूज कर सकते हैं। ये देखो एरो से कमांड आ गए और जितने रन के थे सब आ रहे हैं। कोई भी आई कैन गो बैक टू एनी कमांड एंड कैन रन। सो दैट्स दैट। देन PS। PS का काम है प्रोसेस का स्टेटस दिखाना। तो किसी भी प्रोसेस का स्टेटस दिखाने के लिए उसकी आईडी चाहिए होती है। आईडी जानने के लिए हमारे पास टॉप यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरे लैपटॉप पे कौन कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, तो वो मैं टॉप कमांड अगर एंटर करूंगा तो सारा दिखा देगा कि ये सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस प्रोसेस की आईडी होती है, ये टाइम है कितने टाइम से रन कर रहा है, कितना परसेंटेज सीपीयू का ऑक्युपाई कर रहा है। क्रोम सबसे ज़्यादा कर रहा है तो ऊपर है सबसे, ठीक है। कौन से पोर्ट पे चल रहा है, मेमोरी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। स्टेट क्या है, रनिंग है या स्लीपिंग है करंटली, ये सारी चीज़ें इसकी, ठीक है। तो मान लो हमें प्रोसेस का स्टेटस जानना है किसी कमांड किसी प्रोसेस का। तो प्रोसेस की आईडी क्या है, लेट्स से क्रोम की आईडी हमारे 4507 है। तो हम डालेंगे PS 4507। तो इसमें यहाँ पे उसने क्रोम का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। PSEF करेंगे तो डिस्प्ले ऑल द करेंटली रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। जो रन कर रहे हैं वही दिखाएगा यहाँ पे। लेकिन ये शायद मेरे पे चलेगा नहीं, बिकॉज मैंने बताया ना कि क्योंकि मैक ओएस है तो 90% कमांड्स चलते हैं, कुछ कमांड्स नहीं चलते। इसके लिए आपके पास लिनक्स सिस्टम ही होना चाहिए। टॉप हमने ऑलरेडी देख लिया क्या है। देन यू हैव किल। किल का काम है किसी बैकग्राउंड को, सॉरी किसी कमांड किसी प्रोसेस को किल कर देना। कोई मान लो हैंग हो गया है, नहीं चल रहा है, उसे किल करना है मुझे, तो हम किल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने खोला पोस्टमैन एप्लीकेशन, ठीक है, ये पोस्टमैन खुल गया। अभी यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि पोस्टमैन का क्या है। यहाँ पे ये भाग रहा है इधर उधर, रुकना। पोस्टमैन हेल्प है, अ, ठीक है। मान लो स्लैक हेल्पर मुझे बंद करना है, 981980 इसकी आईडी है। तो किल और प्रोसेस आईडी 1980, तो किल हो गया। टर्मिनल
770 टर्मिनल ही बंद हो गया। तो इस तरह से प्रोसेसेस को बंद कर सकते हैं उसकी आईडी से। वापस खोल देते हैं, टॉप, कैरी ऑन। नाइस, नाइस का काम है कि किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज करना। तो मान लो किसी प्रोसेस की कम प्रायोरिटी है और उसकी ज़्यादा करनी, मुझे पहले एक्सिक्यूट उसको कराना है, तो प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। तो उसमें नाइस लिखेंगे, हाइफन कौन सा प्रायोरिटी नंबर देना है उसका, और प्रोसेस का नाम। क्रोम है तो क्रोम, प्रोसेस का नाम हमको यहाँ से मिल जाएगा टॉप से। यहाँ पे गूगल क्रोम हो गया या फिर टर्मिनल हो गया, इस तरह से। जितनी कम प्रायोरिटी, जितना कम नंबर होगा उतना ज़्यादा उसकी हायर प्रायोरिटी। लोअर द प्रायोरिटी नंबर, हायर द प्रायोरिटी। फिर होता है ऐड कमांड। ऐड कमांड क्या करता है कि किसी प्रोसेस, किसी प्रोग्राम को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि इस पे शायद ये नहीं चलेगा, बट मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। आपने अगर टाइप किया ऐट और फिर टाइम टाइप किया, जैसे कि 9:04 पे, 9:04 PM। तो जब आप ये एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या कमांड आपको रन करना है इतने बजे। वो लिखने के बाद आप एग्जिट करोगे, उसके बाद उतने टाइम पे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखो मैंने कंट्रोल सी किया तो एग्जिट कर दिया, है ना। होप एग्जिट से हो जाए। नहीं, एग्जिट से नहीं, कंट्रोल सी दबाना पड़ता है। ओके, सो दैट्स योर ऐड। फिर आता है क्रॉन टैब। क्रॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है एक सर्टेन इंटरवल पे। तो उसके लिए क्रॉन टैब यूज़ करते हैं। तो लेट्स से कि there is specific thing that you do every day. Let's say when you start your work, you open certain application, you open Google Notes or whatever, और आप चाहते हो कि वो सारी एप्लीकेशन जो आपकी हैं, जो आपको ज़रूरत होती है 9 बजे जब आप काम स्टार्ट करते हो, तो वो खुल जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप क्रॉन जॉब लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्रॉन टैब यूज़ करना है। एक्चुअली क्रॉन टैब नहीं यूज़ करना है, कमांड नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ टाइम बताना है ये सारे। तो पहला होता है मिन, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। मिन, मिन मतलब मिनट्स। मिनट्स आप लिखोगे, फिर घंटे लिखोगे, फिर आप लिखोगे डे ऑफ द मंथ, फिर मंथ, फिर डे ऑफ द वीक। तो जो भी टाइमिंग है, इसमें कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। तो जो आप टाइमिंग डालोगे उस टाइम पे आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे उसके बाद लिखोगे, ये लिखने के बाद, टाइम लिखने के बाद, ये सारा टाइम लिखने के बाद स्पेस, और जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी है आपने जिसमें मल्टीपल फाइल्स ओपन होती है, मल्टीपल कमांड्स रन होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अपने आप वो उस शेड्यूल पे हो जाएगी एग्जीक्यूट। देन यू हैव लिमिट to see or set the resource limits of a program. Then you have alias। तो alias जैसे मैंने बताया अभी, मान लो ls कमांड है जिससे सारे क्या क्या है इस डायरेक्टरी में दिखता है, सारी लिस्ट होती है। मुझे alias बनाना, तो I'll do alias। मैं चाहता हूँ इसका नाम ls ना होके प्लीज लिस्ट डाउन हो, तो वो लिखूंगा, इक्वल्स लिखूंगा जो एक्चुअल कमांड है ls। अब क्या होगा, अब ls से भी रन कर सकते हैं, और माई क्या था, लिस्ट, लिस्ट डाउन प्लीज, तो क्या था, क्या था, प्लीज लिस्ट डाउन, सर, प्लीज लिस्ट। मैंने बहुत बड़ा लिखा है, छोटा लिखना चाहिए था, बट यू गेट द आइडिया। सो नाउ यू कैन सी कि एलियास बन गया। ls से भी रन कर सकते हैं, प्लीज लिस्ट डाउन से भी रन कर सकते हैं। अब इतना सब जो बता रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता कि कल मुझे याद रहने वाला है कि नहीं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी काम आती है। तो अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है, नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड्स जो हैं, वो कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स, इनपुट आउटपुट है सी शेल के लिए। पहला होता है पाइप आउट। तो पाइप का काम होता है कि किसी भी कमांड के आउटपुट को लेना और दूसरे कमांड के को एज अ इनपुट देना।
So send an output of one command as an input of to another command. ठीक है, तो जैसे कि मान लो ls कमांड हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या इसका काम क्या है, लिस्ट करना चीज़ों को, ठीक है। ls कमांड का आउटपुट क्या है, वो सारा कंटेंट दे देगा, मतलब क्या क्या लिस्ट में है, डायरेक्टरी कौन कौन सी है, फाइल्स कौन कौन सी, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैं चाहता हूँ जो वो प्रिंट कर रहा है उसको प्रिंट ना करा के उसको मैं दूसरे कमांड को एज अ इनपुट दे दूँ। उसका जो आउटपुट आ रहा है अभी स्क्रीन पे हमें दिख रहा था, ये सारी चीज़ें जो दिख रही थी हमें, आई वांट कि वो एज एन इनपुट मिल जाए नेक्स्ट कमांड को। तो हम करेंगे ls पाइप। पाइप का काम है इसका जो आउटपुट आया उसको एज ए इनपुट होल्ड करो और नेक्स्ट कमांड जो टाइप कर रहे हैं उसको एज ए इनपुट दे दो। तो दूसरा कमांड होता है लेस। लेस का काम है किसी भी बड़े डेटा को पेज वाइज दिखाना, एक टाइम पे एक पेज में 10 आइटम हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम अगले पेज पे जा सकते हैं। तो हिट करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि इतना लंबा जो आ रहा था हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा था, नाउ आई कैन यूज माय की बोर्ड टू गो डाउन लाइक दैट। अलग अलग पेज पे जा सकते हैं इस तरह से। ये कॉलम दिख रही है, दिस इज फॉर ड्यू टू द लेस कमांड। सो दैट इज द जॉब ऑफ योर। अभी ये निकल नहीं रहा है, एग्जिट टाइप क्यू यूज करेंगे तो क्विट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज रीडायरेक्ट आउटपुट टू अ स्टोरेज फाइल। अगर कोई भी कंटेंट है उसको हमें किसी स्टोरेज फाइल में डालना है तो उसके लिए हम रीडायरेक्ट यूज कर सकते हैं। रीडायरेक्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये ग्रेटर देन साइन। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एको का काम है किसी चीज़ को भी प्रिंट करना। हेलो मैंने किया तो हेलो प्रिंट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट ना करे बल्कि इसका जो आउटपुट आ रहा है यानी कि ये इसको एज एन इनपुट किसी फाइल में डाल दे। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन साइन यानी कि रीडायरेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो लेट्स ट्राई दैट। एको हेलो रीडायरेक्ट कमांड, फाइल का नाम माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कैट माई फाइल डॉट टी एक्स टी। देखो इसके अंदर हेलो चला गया। मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद कुछ और भी चला जाए। ठीक है, अगर मैं कुछ और भी लिखूंगा यहाँ पे, मान लो मैंने फिर से कुछ और लिखा, यहाँ पे इमरान लिखा, वो क्या करेगा, ओवर राइट कर देगा फाइल को। मैं नहीं चाहता ओवर राइट हो जाए। मैं अगर कैट करूँ तो ओवर राइट हो गया, पहले हेलो था अब इमरान हो गया, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि अपेंड हो जाए, मतलब और ऐड हो जाए उसके आगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, विल डू सेम थिंग। लेट्स चेंज द टेक्स्ट और इस बार डबल ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपेंड कर देगा। अब हम चेक करेंगे कैट, तो इसमें दोनों चीज़ें ऐड हो गई। एक और चीज़ ऐड करनी है, चीज़ ऐड हो गई। ठीक है, तो बहुत यूजफुल है पाइप और ये ग्रेटर देन मतलब रीडायरेक्ट ऑपरेटर, रीडायरेक्ट कमांड। सो पाइप का काम है टेक एन इनपुट, sorry, take an output of one command and provide pass that as an input to another command. Greater than sign command जो है वो take the output of a first command and pass it to the, like store it in a file basically। ठीक है, फिर ये दूसरा है इसी का रिवर्स, रीडायरेक्ट इनपुट फ्रॉम अ स्टोरेज फाइल। ये यहाँ से उठा के फाइल में डाल रहा था, अब फाइल से उठा के मैं प्रिंट करेगा। रिवर्स, एकदम रिवर्स है उसका। तो क्या करेंगे, कैट, ठीक है, लेस देन, कौन सी फाइल थी वो, उसे प्रिंट कर दिया। माई फाइल डॉट टी एक्स टी को अगर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, राइट। उसके अंदर कंटेंट है, मैं चाहता हूँ उसका कंटेंट प्रिंट हो जाए। तो कैट का काम है प्रिंट करना कंटेंट। कैट को क्या करेगा, इसे कंटेंट उठा के दे देगा वो, तो वो प्रिंट कर देगा। बस उसका रिवर्स है। अपेंड देख लिया हमने। अब आता है टी। टी का काम है कि कॉपी इनपुट टू बोथ फाइल एंड नेक्स्ट प्रोग्राम इन पाइप।
तो अगर ये ट्राई करेंगे मान लो, तो क्या करेगा, इसका कंटेंट, एलएस का क्या काम है, लिस्ट डाउन करना जितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं करंट डायरेक्टरी, उसको लिस्ट डाउन किया तो उसका जो आउटपुट आया उसको फाइल में तो डाला ही डाला, साथ में उसको प्रिंट भी कर दिया, इसीलिए प्रिंट भी हो गया यहाँ पे। अब अगर हम इस फाइल को चेक करेंगे, देखो इसके अंदर ये सारा कंटेंट आएगा, तो दोनों काम करता है, कॉपी इनपुट टू बोथ फाइल एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। देन यू हैव स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यूज टू मेक अ फाइल रिकॉर्ड ऑफ ऑल टर्मिनल एक्टिविटी। अगर स्क्रिप्ट रन किया तो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके एक फाइल बनाएगा टाइप स्क्रिप्ट और उसके अंदर डाल देगा। ये ईमेल से रिलेटेड है, मेरे पे नहीं चलेंगे, उसके लिए लिनक्स चाहिए और ईमेल सेटअप, बट देख लो। पाइन बेसिकली स्क्रीन ओरिएंटेड मैसेज हैंडलिंग टूल है which can process email with full screen menu। तो कमांड लाइन इंटरफेस से यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ये पाइन है, सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें ईमेल्स भेजने के लिए। दैट्स योर पाइन। देन यू हैव मैसेजेस, सो काम होता है रीड करना मैसेजेस। मेल का काम होता है मेल सेंड करना, मेरे में तो नहीं चलेगा लेकिन अगर चलता तो कुछ इस तरह होता, मेल एस सब्जेक्ट के लिए और फिर उसका एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस। तो कमांड लाइन से आप ईमेल भेज सकते हो लोगों को। यू एनकोड तो काम है एनकोड या डिकोड करना बाइनरी फाइल को फॉर ट्रांसमिशन बाय ईमेल। ईमेल से अगर कुछ एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड चीज़ें भेजना है तो हम यू एनकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर बता चुका हूँ ऑलरेडी। टॉक एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन रियल टाइम सर्विस है, ठीक है। मेरे में क्योंकि अभी लोकली है, कुछ रिमोट नहीं है, बट आई थिंक अगर यूज़र नेम डाला तो इस तरह से टॉक कर सकते हो, मतलब चैट कर सकते हो लोगों से। तो कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स वेटिंग फॉर इनविटेशन कॉलर्स मशीन। क्या वेट करेगा, मैं तो खुद ही इस मशीन पे हूँ, ठीक है। तो टॉक इज एन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन रियल टाइम। तो आप लिनक्स सिस्टम से अपने किसी फ्रेंड के साथ भी चैट कर सकते हो टॉक से। आर एंड रीड द यूज नेट न्यू ग्रुप्स, ये मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। देन प्रिंटिंग कमांड्स, तो प्रिंट के लिए या तो आप डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से प्रिंट करो बैठ के, जो भी प्रिंट होता है यहाँ पे इसका ये वाला, अदरवाइज आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो कमांड लाइन से। आपको टाइप करना है LPR और फाइल का नाम LPR hello.txt। क्या बोल रहा है, नो डिफॉल्ट डेस्टिनेशन, ये मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो ये hello.txt की जो फाइल मैंने बनाई वो प्रिंट कर देता। बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट डेस्टिनेशन जो भी हमने सेलेक्ट किया, हमारा जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो लेगा, लेकिन अगर वो नहीं सेट है यार तो हमें सेट करना होगा। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज होता है। आपने मान लो मल्टीपल प्रिंटिंग कमांड्स दिए हुए यहाँ से, तो अगर चेक करना है किसी पर्टिकुलर फाइल का स्टेटस की क्या है, प्रिंट हुई है नहीं हुई है, हैंग हो गई है, एरर है, तो LPQ कमांड से यूज कर सकते हैं। सेम थिंग LPQ और फिर फाइल का नाम नहीं, एक्चुअली इट गिव्स यू द ऑल द फाइल्स, स्टेटस ऑफ ऑल द फाइल्स। देन LPRM, किसी पर्टिकुलर फाइल को मे बी हैंग हो गई है या फिर हमने गलती से कमांड दे दिया अभी कैंसिल करना है उसको, तो LPRM से कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्यू में से। देन यू हैव nscript which converts the text file to PostScript format for printing। ये सब में सब आई डोंट थिंक सब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बट कुछ कमांड्स इसमें मतलब यूजफुल है। सेड, तो अलग अलग टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे कि अभी मैं कोई भी नई फाइल बनाता हूँ तो मैं नैनो यूज़ करता हूँ और फिर text.txt, तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर खुल जाता है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नैनो टेक्स्ट एडिटर। इसी तरह विम भी होता है, विम टेक्स्ट एडिटर होता है, वी
टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ये विम खुल गया, देखो विम के अंदर भी मैं टाइप कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये कभी चल याद ही नहीं रहता मुझे क्या कमांड है इसका। क्यू ओके। तो सेट इसी तरह एक टेक्स्ट एडिटर है। पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट लैंग्वेज है। ए डब्ल्यू के पैटर्न स्कैनिंग प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। आई डोंट थिंक इतना ये सब पूछने वाला है। सॉर्ट यूजफुल है। कोई भी फाइल के अंदर मान लो काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, या फिर नंबर्स तुम्हारे रैंडम ऑर्डर्स में है, उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई फाइल बनाई, नैनो माई सॉर्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, देगा 1 4 6 8। ठीक है, बंद किया। अब इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट फाइल का नाम माई सॉर्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, तो देखो उसने सॉर्ट कर दिया। क्या थी एक्चुअल फाइल, अब सॉर्ट कर चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट यू मस्ट हैव सीन कि मैं उस ऑर्डर में नहीं थी, तो उसने प्रॉपर ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अलग अलग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं जिससे बता सकते हैं उसको किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सारी चीज़ें। देन यू हैव टी आर। टी आर का काम है ट्रांसलेट करना। मान लो कोई फाइल है जिसमें आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, कुछ आपको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप टी आर से कर सकते हो। टी आर ट्रांसलेट होता है। तो लेट मी शो यू। इसी फाइल को मैं ओवरराइट करता हूँ अब, क्योंकि हमने ऊपर एक कमांड सीखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो इसको लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको राइट करता हूँ। हमने सीखा था ये ऑपरेटर क्या करता है कि इसका आउटपुट लेगा और एज एन इनपुट नेक्स्ट कमांड को दे देगा, मतलब फाइल में स्टोर कर देगा। तो हेलो डॉट टी एक्स टी, अभी कैट करेंगे हेलो डॉट टी एक्स टी, तो देखो आ गया इस फाइल के अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे टी आर कमांड, ट्रांसलेट कमांड। इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी फाइल, हेलो डॉट टी एक्स टी। फिर पाइप कमांड, ये पाइप के साथ यूज, एक्चुअली कैट पी आर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका आउटपुट इसको एज एन इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसको इनपुट चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा ए टू जी। ए टू जी कैरेक्टर्स थे, उसको कैपिटल ए टू जी में कर दो। तो क्या किया उसने, हेलो वर्ल्ड अभी कैपिटल हो गया। अभी मैं कैट करता हूँ तो डॉग नहीं आएगा, बट हेलो वर्ल्ड आएगा। यहाँ पे उसने फाइल को नहीं चेंज किया, उसने बस आउटपुट को चेंज किया इसके, और प्रिंट कर दिया। ठीक है, विल कन्वर्ट आउटपुट ऑफ हेलो टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स। फिर आता है आपका कट। कट का काम है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कट कर सकते हैं, तो उसको मैं करूँगा नहीं, बट मैं दिखा दूंगा। कम ऑन। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स कट करने हैं, तो वो कट करके दे रहा है बेसिकली। अलग अलग फ्लैग्स पास करने होते हैं। फर्स्ट बाइट ही निकालना है इसे, तो फर्स्ट बाइट निकालेगा। थर्ड बाइट निकालना है, थर्ड बाइट निकालेगा। फर्स्ट टू थर्ड बाइट। तो कट का वो काम है। पेस्ट, सिमिलरली पेस्ट करता है कॉलम्स को फाइल में। डीडी का काम है कॉपी डेटा बिटवीन डिवाइसेस। फिर आता है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, एफटीपी। ये सब मैंने नहीं पढ़ा है, तो आई इग्नोर दैट, एंड आई डोंट थिंक आई हैव read all these also. So yeah, I think that's it for today.
कोई क्वेश्चंस हैं? Can you put a new line in echo? Sorry. How do you put a new line in echo in the echo New command? line. I think Yeah, can you tab do is that? I have not tried it. Uh, I tried it. It shows the file with the slash n. It doesn't show two lines. oh, okay. Because I think we are putting in the quotes. Maybe quotes is going as a string. Let's try this. Uh, hmm. नहीं कर रहा. I don't know. I have to check it. कैसे होता है. Okay. But you can use editor and you can do the new line there also. Yeah. यहाँ पे कर सकते. और कोई क्वेश्चन है? No. You want this file? Yes, that would be helpful. Send me the email address on the chat. Stop share. ठीक है, I really hope I remember some of this tomorrow. I am also getting nervous. Like you have to answer questions in front of everybody. That's There's something so that many. just look at so many. I'm telling you, this is not all. Huh? It's like I would say 65 to 70% of the commands. 65% to be precise. 60 to 65%. There are more. So my best suggestion is important questions, features of Windows, features of Linux, what is kernel, what is shell, मोस्ट कॉमनली यूज कमांड. एक पूरा सेक्शन है उसमें. मैं भी ये पूरा कंप्लीट करने वाला हूं. मैंने Yeah. पूरा कंप्लीट नहीं किया मोस्ट कॉमनली कमांड्स. तो वो सारा पढ़ लेना. आई थिंक दोज आर द मोस्ट कॉमन. फिर टाइम बचे देन जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. मतलब उसी में से Yeah. आने आने वाला है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से. ठीक है. Yeah. ओके देन थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.